seen the functions yet. We have not seen the functions yet. हमने अभी तक उसके सारे functions नहीं पढ़े कि स्टमक क्या काम करता है, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है, हमने अभी तक क्या देखा, सिर्फ वो कैसा दिखता है. वैसे ही let us learn about the digestive glands and then we will move on to the function part कि वो काम क्या करता है, वहां पे कौन कौन सी चीजें डाइजेस्ट होती है etc. So let us learn about the digestive gland. तो digestive gland में I have told you how many glands we are having. What are the glands we are having in our buccal cavity? Which gland is present? अपने buccal cavity में कौन सा gland है? Salivary gland. शाबाश. Salivary gland. What is the secretion of salivary gland called as? The secretion of salivary gland is called as Saliva. saliva. Very good. ठीक है. फिर आता है liver. आप देख सकते हो नेक्स्ट डायग्राम किसका दिया है, लिवर. लिवर के सिक्रीशन को क्या बोला जाता है? Bile juice. वेरी गुड, बाइल जूस. उसको स्टोर किया कहाँ जाता है, कहाँ पे स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. पैनक्रिया. पैनक्रिया बनाता है Pancreatic juice. पैनक्रियाटिक जूस भी बनाता है और बहुत सारे हॉर्मोन्स भी बनाता है. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. फिर ये जो है दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाएगा? गैस्ट्रिक जूस. वैसे ही इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या बनाएगा? इंटेस्टिनल जूस. ठीक है, चलो लेट अस लर्न ईच वन इन डिटेल नाउ. Please note down the things as you do always. You can take a screenshot of this page or you can just write down. The glands which secretes digestive juices for digestion of food are called as the digestive glands. What is the definition of digestive glands? ऐसे glands जो digestive juice secrete करते हैं जिससे कि food का digestion हो पाता है. So these are called as the digestive glands. So these are the 5 digestive glands which you have to learn in detail. Have you all noted the digestive gland ka definition? The gland which secretes digestive juices for the digestion of food. These names you know, the glands names you know. Let us first understand about the salivary gland. Okay. So the salivary glands are 3 pairs. कितने होते हैं अपने पास? 3 pairs. 3 जोड़ी हैं. 3 pairs of salivary glands we are having. What are the position of it? Parotid gland. Parotid gland is present in front of the ear. Please note down. Parotid gland कहाँ पर present है? It is present in front of the ear. आप क्या करोगे बेटा? आप हेडिंग में salivary gland लिखो और उसको 3 branches में divide करो. That will be more easy for you. salivary gland लिख के उसको 3 branches में divide करो. किया? सबसे पहला लिखो parotid gland. Parotid gland के यहाँ पे what you will be writing? उसके नीचे लिखो उसका position, उसका location. It is present in front of the ear. हमारे दोनों ear के सामने प्रेजेंट है. तो ये हो गया 1 pair. अब आता है नेक्स्ट नंबर सबलिंगुअल ग्लैंड. सबलिंगुअल ग्लैंड ये कहां पर प्रेजेंट है? लिंगुअल मतलब होता है टंग. बायो में लिंगुअल का मतलब होता है टंग. तो सबलिंगुअल मतलब कहां पे इसका पोजीशन हो गया? टंग के नीचे. सब मीन्स बिलो, सो बिलो द टंग. बिलो द टंग. सबलिंगुअल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग. फिर तीसरा वाला देखो, सब मैक्सिलरी भी बोल सकते हो या फिर आप इसको सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हो. आपके टेक्स्ट बुक में इसका नाम सब मैंडिबुलर है. ठीक है, तो सब मैंडिबुलर मतलब कहां पर प्रेजेंट है? मैंडिबल्स किसको बोलते हैं बेटा? लोअर जॉ को मैंडिबल्स बोलते हैं, लोअर जॉ को. तो सब मैंडिबुलर मतलब लोअर जॉ के नीचे, प्रेजेंट बिलो द लोअर जॉ. अंडरस्टूड? तो हमने क्या देखे? 3 pairs of salivary gland देखे. What are the 3 pairs of salivary gland? 1 pair is present in front of ear which is called as a parotid gland.
One pair is present below the tongue, which is called as a sublingual gland, and one pair is present below our lower jaw, which is called as a submandibular gland. Very clear? तो हमें ये 3 pairs of glands के बारे में तो पता चल गया कि ये यहाँ प्रेजेंट है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो. अब ये जो तीनों पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स है, फिर वो पैरोटिड हो, सबलिंगुअल हो या सबमैक्सिलरी हो, तीनों के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. क्या होते हैं? These glands, these 3 pairs of glands, they contain 2 types of cells. Please note down. क्या लिखोगे? These 3 pairs of glands, they show 2 types of cells. So again, make it 2 part. Make it 2 part. Which are the 2 types of cells? So first cell is called as a serous cell. S-E-R-O-U-S. Serous cell. And दूसरा वाला है mucus cell. Mucus cell. Serous cells, mucus cell. मतलब पैरोटिड के पास भी सेरस सेल म्यूकस सेल्स है, सबलिंगुअल के पास भी सेरस म्यूकस है, और सब मैक्सिलरी के पास भी सेरस और म्यूकस है. ठीक है. अच्छा, अब ये सेरस सेल क्या करता है? तो सेरस सेल जो है ना, वही डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज. सो बिलो द सेरस सेल, राइट डाउन ऑल ऑफ यू, इट secretes enzyme called, it secretes the enzyme called salivary amylase. It secretes the enzyme called salivary amylase. ठीक है. सलाइवरी अमाइलेज को एक और नाम से जाना जाता है. यू कैन जस्ट राइट डाउन ओवर देयर, पुट अ स्लैश एंड राइट डाउन. देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं कर्सर मूव कर रही हूँ. टाइलिन. टाइलिन जिसमें पी साइलेंट होता है, टाइलिन. सलाइवरी अमाइलेज को एक और नाम से जाना जाता है टाइलिन. पी इज साइलेंट ओवर देयर. डन. अब उसके नीचे वापस आप लिखो, पुट एरो मार्क एंड वापस राइट डाउन. दिस एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च. इस एंजाइम का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करना. अभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्टार्च इज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट है. मतलब ये सलाइवरी अमाइलेज अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब चीज रखा है तो किसको डाइजेस्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को. और उसमें भी किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा. समझ में आ गया? तो सलाइवरी अमाइलेज का काम है कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करना. स्टार्च एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है. पॉलीसेकेराइड का मतलब समझता है बेटा आपको? नहीं समझता है तो प्लीज नोट डाउन. पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स शुगर. पॉली का मतलब होता है मेनी एंड सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर. तो पॉलीसेकेराइड्स मतलब बहुत सारे सिंपल शुगर्स है. बहुत सारे सिंपल शुगर्स मिलके कॉम्प्लेक्स शुगर बन रहा है. समझ में आ गया? ये आप बायोमोलिक्यूल्स लेसन में पढ़ोगे, बट ये लेसन के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है. अगर आप पॉलीसेकेराइड को ब्रेक डाउन करेंगे ना बेटा, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड से छोटा छोटा होते हुए डाइसेकेराइड पे आएगा. डाइसेकेराइड से और छोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा? मोनोसेकेराइड. तो वो सीक्वेंस आप लिख लो. पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड. सेकेराइड का मतलब होता है शुगर. मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, मतलब मोनो एंड मोनो विल मेक डाई and many dyes will make polysaccharide. Is that very clear to all of you बच्चा? Yes. तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये क्या करता है? ये स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है उसको डाइसेकेराइड में बदल देता है. तो प्लीज नोट डाउन. स्टार्च लिखो, एक रिएक्शन लिखो, स्टार्च. पुट एरो मार्क. स्टार्च एक वो जैसा आप केमिकल रिएक्शन वाला एरो मार्क डालते हो ना, वैसा एरो मार्क डालो और उसके बाद लिखो मैल्टोज. मैल्टोज, MALTOSE, मैल्टोज.
स्टार्च के नीचे ब्रैकेट में लिखो पॉलीसेकेराइड, स्टार्च के नीचे ब्रैकेट में लिखो पॉलीसेकेराइड, और मैल्टोज के नीचे ब्रैकेट में लिखो डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। अंडरस्टूड? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अमाइलेज नाम का एंजाइम क्या करता है, स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड है उसको डाइसेकेराइड मैल्टोज में बदलता है। ठीक है, और म्यूकस सेल का काम क्या होगा, म्यूकस का मतलब क्या होता है बेटा, स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी हो गई तो आप देखोगे कि आपके नोज में से बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है। तो mucus is a sticky substance which is secreted all over it, which is present in all over our body. अपने हर एक सिस्टम में mucus gland present होता है। तो mucus यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, जिससे कि वो फूड को क्या कर सकेगा, स्लिपरी कर सकेगा, जिससे कि हम आसानी से उसको स्वॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो म्यूकस सेल विल सिक्रेट म्यूकस, म्यूकस सेल हमेशा म्यूकस ही सिक्रेट करता है। और म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक टाइप का स्टिकी सब्सटेंस होता है। समझ में आ गया? जो क्या काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन मतलब सॉफ्टनिंग का काम करेगा, जिससे कि फूड आसानी से स्वॉलो किया जा सके। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर। अब आप देखो पीवी स्क्रीन पर आकर समझो। आप देख सकते हो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, आप यहाँ पे सब लिंगुअल ग्लैंड भी देख पा रहे हो, आप सब यहाँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी देख पा रहे हो। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा के अंदर 99.5% वाटर होता है। प्लीज नोट डाउन दिस आल्सो, सलाइवा कंटेन्स 99.5% वाटर। म्यूसिन, म्यूसिन मतलब म्यूकस। एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन एंजाइम। लाइजोजाइम्स, नाउ व्हाट इज दिस लाइजोजाइम्स, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट ये मैं आपको बताना चाहूंगी। दिस लाइजोजाइम्स का इंट्रोडक्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि लाइजोजाइम्स भी सिक्रीट होता है। लाइजोजाइम्स विल किल द बैक्टीरिया। जब आप खाना खा रहे हो ना बेटा, तो जब आप खाना खा रहे हो तो कुछ बैक्टीरिया जा सकता है ना, तो फिर ये जो लाइजोजाइम्स है ना, दे विल किल द बैक्टीरिया व्हिच आर एंटरिंग थ्रू एयर इन अवर माउथ। तो लाइजोजाइम्स आर सिक्रीटेड इन अवर टीयर्स आल्सो। हमारे टीयर्स में, हमारे आंसू में भी लाइजोजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को किल करते हैं। ठीक है, तो लाइजोजाइम्स ये वर्ड याद रखो, कहीं पे भी प्रेजेंट होगा उसका काम होगा टू किल द बैक्टीरियाज। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, HCO3 एंड दी मेनी अदर थिंग्स। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? So again I will repeat it once again. Salivary gland secretes saliva. What does the saliva contains? It contains maximum amount of water. How much? 99.5% of water is there. Mucus is there, which we also call as mucin. Very important enzyme, that is a salivary amylase, which can also be called as a tyline. It also contains lysozymes, which will kill the bacteria. It also contains some electrolytes like sodium, potassium, chloride, etc. There are three pairs of salivary gland. One which is present in front of our ear called as parotid gland, which is the largest one. One which is present below our tongue is called as sublingual. One which is present below our lower jaw called as a submaxillary or submandibular gland. All these three glands are having two types of cells, serous cells and mucous cell. Serous cell will secrete the enzyme which will help in the digestion of polysaccharide into the disaccharide. To be very specific, starch, which is a type of a polysaccharide, with the help of this salivary amylase, it will be converted into the maltose, which is a disaccharide. Is that very clear to all of you? सबको समझ में आ गया इतना? Yes or no? Yes, ma'am. All of you? Yes. चलो ठीक है, good, good, very good. So now, infection to the parotid gland is called as mumps. You can again note down this thing. Infection to this parotid gland, as I've told you, parotid is the largest salivary gland. अगर उसको कुछ infection हो गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, mumps कहते हैं. You can see the photo of a child. Next,
हम चलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरफ. गैस्ट्रिक ग्लैंड is present in the stomach. It is present or it is found in the inner wall of our stomach. Again, in the stomach, there are in the gastric gland, there are 3 kinds of cells present. Very, very important again. बहुत सारे बच्चे लोगों का इसका थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, सो प्लीज वो कंफ्यूजन सब दूर करो, क्योंकि इसके अलग अलग नाम भी हैं, इसके वजह से मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट. सो प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू. लिख लो अच्छे से, एक बार लिखोगे ना, लिख के याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा. So 3 types of cells we can see in the gastric glands. They are peptic cells. Peptic cells. अच्छा, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं. म्यूकस नेक सेल्स. ठीक है, म्यूकस सेल्स आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. 3 ब्रांचिंग करो. म्यूकस सेल लिखो, उसके नीचे लिखो सिक्रेट्स म्यूकस. फिर लिखो पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स और zymogen सेल्स. चीफ सेल्स को ये पेप्टिक भी बोलते हैं, zymogen भी बोलते हैं. What does it secretes? पेप्टिक सेल secretes, उसके नीचे आप लिख सकते हो secretes प्रोएंजाइम. प्रोएंजाइम. प्रोएंजाइम का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोएंजाइम मतलब जो हेल्प करता है एंजाइम बनाने में, उसे हम कहते हैं प्रोएंजाइम. प्रोएंजाइम, उसका नाम क्या है? पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन. Have you all written? Please tell me, because किसी का वीडियो ऑन नहीं है तो I can't make out कि whether you are writing or not writing. Yes, ma'am. Please on your video बेटा. लिखा चीफ सेल, zymogen या पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट करता है बेटा? मैंने अभी आपको बताया है, इट सिक्रीट्स दी प्रोएंजाइम. प्रोएंजाइम का मतलब मैंने आपको क्या बताया? प्रो मतलब पहले, एंजाइम का मतलब तो आपको पता ही है. तो प्रोएंजाइम का मतलब क्या होगा? जो एंजाइम बनाने में मदद करेगा. तो ये पेप्टिक सेल कौन सा एंजाइम बनाता है, कौन सा प्रोएंजाइम बनाता है? लिखो उसका नाम, पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन. PEPSINOGEN. पेप्सिनोजेन. फिर तीसरे नंबर पे आप कौन सा लिखोगे? पैराइटल सेल, जिसको आप ऑक्जेंटिक सेल्स भी कह सकते हो. पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स. ये क्या सिक्रीट करता है? HCl and intrinsic factor. HCl और intrinsic factor. Intrinsic का मतलब क्या होता है बेटा? अगेन बायो में, intrinsic मतलब अंदर का फैक्टर. अंदर. इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर, और उसका अपोजिट क्या होगा? एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर. ठीक है, तो HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ये बनाता है. तो वापस मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, देखो आपने करेक्टली लिखा है कि नहीं. गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है? इट इज फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ स्टमक. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, it is made up of 3 types of cells. You have made 3 part, you have made 3 branching. You have written mucus cell, उसके नीचे आपने लिखा secretes mucus. म्यूकस का काम तो अभी आपको मालूम है कि लुब्रिकेशन करता है. फिर आपने लिखा चीफ सेल्स, put a slash zymogen cells, put a slash peptic cells. What they secretes? They secrete the proenzyme called as a pepsinogen. Next, auxentic or also called as the parietal cells. What does they secrete? They secrete the dilute HCl and the intrinsic factor. समझ में आ गया? All of you can see the diagram and you can understand. You can see, अगर हम इस पार्ट को, स्टमक को ऐसे कट करके ऐसे देखेंगे तो we can see all these regions. We can see the mucus cells, we can see the parietal cells. ठीक है, you can see HCl and intrinsic factor. Intrinsic factor spelling you can see over here. Intrinsic factor. Understood?
Yes, miss. ओके, नाउ अभी तक मैंने आपको जो बताया दैट वाज ऑल अबाउट योर 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक, बट दोज हु आर हैविंग इंटरेस्ट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है? दिस इज फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। आपको अभी तक मैंने जितना लिखा के दिया दैट इज फॉर योर 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में जितना दिया है। अब इस पेज पे जो मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ इसमें आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा भी दिया है, तो सिर्फ सुन लो, उसमें कुछ हार्म नहीं है। So mucus cell will secrete mucus and some bicarbonates. इसका काम क्या होता है? It protects the stomach wall from the HCl. HCl you know that it is an acid. तो ये mucus क्या करेगा? उस HCl से बचाएगा and it will prevent the auto digestion. ठीक है, खुद से डाइजेशन होने में से बचाएगा। चीफ सेल या जाइमोजेन सेल्स या पेप्टिक सेल्स, दे सिक्रीट द प्रोएंजाइम। अभी मैंने आपको बताया पेप्सिनोजेन, सिर्फ मैंने अभी आपको एक ही प्रोएंजाइम का नाम बताया था, बट यू कैन ऐड ऑन इन योर बुक, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, you can just add on. It also secretes prorenin and lipase enzyme. Oxyntic cells, they secretes the HCl and Castle's gastric factor, जिसको हम intrinsic factor भी कहते हैं। Castle's gastric factor, that is the intrinsic factor, just now I've told you. So gastric gland secretes acidic, that is pH is 1.8. आपको मालूम है ना pH स्केल में 7 से नीचे एसिडिक होता है और 7 के ऊपर बेसिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है। 7 के नीचे कोई भी फिगर को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक, और 7 के ऊपर के फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे। तो क्योंकि ये एसिड सिक्रेट करता है, अभी हमने देखा कि HCl सिक्रेट करता है, तो ऑब्वियसली इसका सिक्रेशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। So the pH is 1.8 to 2. गैस्ट्रिक जूस में 99.5% अगेन सिर्फ वाटर होता है और सिर्फ 0.5% में ये बाकी के सब्सटेंस होते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? You can just note down Yes, all ma'am. these things also. Yes, miss. तो हमारा दूसरा ग्लैंड भी पढ़ के हो गया। इसका फंक्शन क्या है हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि ये पेप्सिनोजन क्या काम करता है, ये रेनिन क्या काम करता है, ये HCl का काम क्या है, ये गैस्ट्रिक फैक्टर्स का काम क्या है। वी ऑल विल बी लर्निंग दैट थिंग इन द फिजियोलॉजी पार्ट। वी आर जस्ट लर्निंग द स्ट्रक्चर जस्ट नाउ। अब आते हैं अपने सबसे बड़े ग्लैंड की तरफ, दैट इज द लिवर। लिवर इज said to be the largest gland of the body. इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। So how much big it is? It is about 1.5 kg. 1.5 kg in adult human being. What is the color? If we say about the color, it is dark reddish brown in color. Dark reddish brown in color. Where it is present below the diaphragm. Diaphragm आपको पता है बेटा diaphragm क्या होता है? Diaphragm एक muscular septum है। Septum का मतलब बायो में होता है वॉल। अगर कोई चीज दीवार का काम करता है ना हम, तो हम उसको बायो में सेप्टम बोलते हैं। तो ये सारे बायो के जो टर्म्स है ना बेटा, आप याद कर लोगे तो बायो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सो muscular septum which is separating the abdominal cavity and the thoracic cavity. ऊपर वाले कैविटी को हम क्या कहते हैं? thoracic cavity. और जहां पे हमारा इंटेस्टाइन वगैरह है ना, उसे हम abdominal cavity कहते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम ऐसा है जिसके ऊपर लंग्स हमारा रेस्ट करता है, अपना लंग्स उसके ऊपर रेस्ट करता है, और ये दो पार्ट को सेपरेट करता है। थोरैसिक कैविटी जहां पे अपना लंग्स और हार्ट वगैरह है, और एब्डोमिनल कैविटी जहां पर हमारा इंटेस्टाइन वगैरह है। ठीक है, तो ये लिवर कहां पर प्रेजेंट है? डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। कौन सा साइड में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन अवर राइट हैंड साइड। हमारे राइट हैंड साइड में डायफ्राम के जस्ट नीचे ही हमारा लिवर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। नाउ क्योंकि हमारा लिवर इतना बड़ा है, इसके कारण अगर आपने किडनी के बारे में कभी सुना होगा तो आपने सुना होगा कि किडनी सेम लेवल पे नहीं है। हमारा राइट साइड का किडनी थोड़ा सा नीचे है और लेफ्ट साइड का किडनी थोड़ा सा ऊपर है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? यस और नो? Yes. Have you ever heard? Yes, miss. No.
अच्छा, इफ यू हैव नॉट हर्ड ना, तो प्लीज समझ लो, क्योंकि हमारा लिवर राइट साइड में इट इज सो बिग, बिकॉज ऑफ सो बिग लिवर आवर राइट साइड किडनी शिफ्टेड लिटिल बिट डाउन। हमारा राइट साइड का किडनी थोड़ा नीचे हो गया और लेफ्ट साइड का किडनी थोड़ा सा ऊपर है। तो ये याद रखो बेटा, जब आप किडनी भी पढ़ोगे तो आप ये याद रखना कि राइट साइड का किडनी इज लोअर इन पोजिशन एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर। ठीक है, सो ये एक बात ये हो गई, हमने उसका वे पढ़ लिया। नाउ इट इज बाई लोब्ड। कितना लोब्ड है? उसमें 2 लोब्स है, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब। अब राइट लोब लार्ज है और लेफ्ट लोब थोड़ा छोटा है। हर एक लोब में किससे सेपरेटेड है? बाय लोब्यूल्स। लोब्यूल्स का मतलब बायो में होता है कंपार्टमेंट्स। ठीक है, सो 2 लोब है इसमें और हर एक लोब जो है वो किससे सेपरेटेड है? हम लिवर को हेपेटिक भी बोलते हैं, प्लीज नोट डाउन। जैसे हर एक ऑर्गन को है ना अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। जैसे हार्ट को कार्डियक बोला जाता है, लंग्स को पल्मोनरी भी बोला जाता है, किडनी को रीनल भी बोला जाता है, वैसे ही लिवर को हेपेटिक बोला जाता है। समझ में आया? Okay, so each lobe is separated into many lobules or compartments, and that are called as a hepatic lobules. हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में आपको थोड़ा सा और भी पढ़ना है। अभी आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देख लो कि ये लिवर है और इसके पास ही आप देख सकते हो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, विच इज कॉल्ड एज अ गॉल ब्लैडर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमन डक्ट, आप कॉमन डक्ट भी देख सकते हो। कॉमन डक्ट क्या है? जो लिवर और गॉल ब्लैडर का कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन डक्ट। और फिर आप उसके बाद सिस्टिक डक्ट देख सकते हो। सिस्टिक डक्ट मतलब जो गॉल ब्लैडर ओपन हो रहा है जहां पर, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टिक डक्ट। डक्ट मतलब ओपनिंग, और यहाँ पे है पैनक्रियाटिक डक्ट। सो प्लीज नोट डाउन द important ducts and you can take again a screenshot of this particular page. Have you done it? Yes, ma'am. Yes. Yes, miss. Okay. Now let us learn more about the liver. When we talk about the histology of liver, histology का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम कोई भी ऑर्गन का टीएस लेकर पढ़ते हैं, मतलब उसको हम कट करेंगे, उसको स्लाइड के नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो उसे कहा जाता है टीएस। टीएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे कोई ऑर्गन है, समझो ये ऑर्गन है मेरा, जब मैं इसको ऐसे कट करूंगी, हॉरिजॉन्टल कट करूंगी, अगर मैं इस ऑर्गन को हॉरिजॉन्टल कट करूंगी और उसका एक पतला सा लेयर लेके मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगी, तो उसको मैं कहूंगी टीएस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया ना उसको, तो ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। पर अगर मैं कोई चीज को ऊपर से नीचे कट कर रही हूँ, ऊपर से नीचे, तो मैं उसे कहूंगी वर्टिकल सेक्शन या वीएस सेक्शन, वीएस। तो बायो में हिस्टोलॉजी का मतलब होता है जब हम टिश्यू लेवल पे या सेल लेवल पर पढ़ाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में या तो आपको टीएस पढ़ना होगा या तो आपको वीएस पढ़ना होगा, या तो ऐसे ही ट्रांसवर्स वाला या तो वर्टिकल वाला। जनरली नॉर्मली आप देखोगे कि सारे ऑर्गन्स का टीएस ही पढ़ा जाता है, वीएस भी पढ़ा जाता है कुछ ऑर्गन्स का, बट ज्यादा करके टीएस पढ़ा जाता है। तो अगर हम टीएस देखेंगे लिवर का, तो आप देख सकते हो कि लोब्यूल्स के अंदर हेपेटिक सेल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस, लिवर के अंदर लिवर सेल्स होंगे ना, तो लिवर सेल्स को ही हम क्या कह रहे हैं? हेपेटिक सेल्स कह रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि सेल्स है, दे आर अरेंज्ड इन अ रेडियल प्लेट्स। बेटा किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज ऑफ योर माइक। प्लीज ऑफ। आयुष तिवारी का मिस। आयुष प्लीज म्यूट करो बेटा अपने आप को। ओके, तो यू कैन सी दैट ये जो हेपेटिक सेल्स आप देख सकते हो, हेपेटिक सेल्स कैसे अरेंज्ड है? गोल गोल रेडिएटिंग अरेंज है ना, ऐसा लग रहा है कोई डिजाइन बन रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पे ऐसे सब जगह अरेंज है, यू कैन सी द कर्सर। तो हेपेटिक सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं। साइट्स का मतलब बायो में होता है अगेन सेल, याद रखो, CYTE, साइट कहीं पे भी है उसका मतलब भी होता है सेल।
तो हेपेटोसाइट बोलो या हेपेटिक सेल बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हेपेटोसाइट का लेबलिंग ओवर हियर। तो हेपेटोसाइट कैसे अरेंज्ड है, ऐसे रेडिएटिंग फॉर्म में अरेंज है। और किसके आजू बाजू में अरेंज्ड है, सेंट्रल वेन के आजू बाजू में, मतलब एक बीच में एक सेंट्रल वेन है और उसके आजू बाजू में सारे सेल्स ऐसे कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज्ड है, कॉर्ड के फॉर्म में, ऐसे लंबे लंबे कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज्ड है। अच्छा, अब बिटवीन दिस प्लेट्स आर द ब्लड फिल्ड हेपेटिक साइनोसॉइड्स। अब आप देख सकते हो कि इन सबके बीच में जो येलो कलर से आपको दिखाया गया है, येलो कलर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइनोसॉइड्स है। साइनोसॉइड्स का मतलब क्या होता है, पूरा नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को हम साइनोसाइड्स बोलते हैं। तो लिवर का ब्लड कैपिलरीज को हम क्या कहेंगे, हेपेटिक साइनोसॉइड्स। हेपेटिक साइनोसॉइड्स मतलब लिवर का ही खुद का ब्लड का वेसल्स। अब उसके अलावा आप और भी एक चीज देख सकते हो, कफर सेल्स इन द साइनोसाइड्स। मतलब ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही कुछ एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसे कहा जाता है कफर सेल्स। कफर सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे बैक्टीरियाज को या डैमेज सेल्स को रिमूव करते हैं। अगेन आपने अगर सुना होगा तो हर एक सेल का लाइफ स्पैन होता है, जैसे कि अगर मैं आरबीसी के बारे में बात करूंगी तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी डेड हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करूंगी तो 3 to 4 डेज में वो डेड हो जाता है। प्लेटलेट्स की बात करूंगी तो 6 या 7 दिन में डेड हो जाता है। तो ये डेड होने के बाद ये सेल्स जाते किधर हैं, तो डेड होने के बाद ये सारे सेल्स लिवर में आते हैं और लिवर में इसकी सब साफ सफाई होती है। तो किससे की जाती है साफ सफाई, कफर सेल से। ठीक है, तो कफर सेल्स का काम क्या है, जो भी हमारे बॉडी का डैमेज्ड सेल है या डेड सेल्स है उसको रिमूव करना, उसको एनगल्फ करना, या फिर कोई बैक्टीरियाज है तो उसे एनगल्फ करना। तो इसीलिए लीवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बिकॉज वो साफ सफाई का भी काम करता है, सारे डेड सेल्स को, डैमेज सेल्स को, बैक्टीरियाज को, सबको एनगल्फ करता है। अब लिवर क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसके ऊपर कवरिंग तो होना ही चाहिए। तो लिवर के ऊपर का जो कवरिंग होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है हर एक ऑर्गन में। अगेन ये याद रखो बेटा, बायो में जो भी ऑर्गन आप पढ़ोगे हर एक ऑर्गन के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है। फिर आप ब्रेन ले लो, फिर आप हार्ट ले लो, फिर आप किडनी ले लो, कोई भी ऑर्गन ले लो, सबके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है। एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू के कवरिंग को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे भी लिवर का कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, ग्लिसन्स कैप्सूल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ग्लिसन्स कैप्सूल। इज दैट वेरी क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? ये वाला स्लाइड में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ डाउट है, इसमें कुछ पूछना है मुझे, एनी पॉइंट जो आपको नहीं समझा है, आई विल रिपीट इट वंस अगेन। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको कुछ मिस आउट हो गया होगा तो। सबसे पहला, आई एम वाज टेलिंग दैट कि लिवर के ऊपर एक कवरिंग है, लिवर के कवरिंग को मैं क्या बोलूंगी, ग्लिसन्स कैप्सूल। ये ग्लिसन्स कैप्सूल किस चीज से बना है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ठीक है, फिर जब हमने इसका हिस्टोलॉजी लेकर देखा, जब मैंने इसको कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मुझे उसके अंदर क्या नजर आया है, हेपेटिक सेल्स, जिसको मैं हेपेटोसाइट्स भी बोल सकती हूँ। ये हेपेटोसाइट्स कैसे अरेंज्ड है, ऐसे कॉर्ड के फॉर्म में, ऐसे कॉर्ड के फॉर्म में रेडियली अरेंज्ड है। किसके आजू बाजू अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल वेन। ठीक है, between these hepatocytes we can see what, we can see the blood sinusoids, which can also be called as a hepatic sinusoids. In between the sinusoids we can see a special cells called as a Kupffer cells. What is the importance of this Kupffer cells, they are doing साफ सफाई का काम। What is the साफ सफाई का काम, removing the dead cells, removing the damaging cells, removing the bacteria. Is that very clear? इतना अभी सबको समझ गया? We have to learn more about the liver now. इतना सबको समझ में आया? Yes. Yes, miss. Okay. Now before going to this part, I will explain you in more detail about the liver now.
जो सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है कॉलेजेस में, हम टीचर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, आस्किंग द फंक्शंस ऑफ लिवर। सो आपके टेक्स्ट बुक में फंक्शंस ऑफ लिवर दिया है, पूरा पैराग्राफ फॉर्म में दिया है। ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन बायो आंसर इन पॉइंट वाइज। हाँ, पॉइंट वाइज लिखने का आदत डालो एंड यू हैव टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो मैं अभी आपको एक के बाद एक आपको उसके फंक्शंस बताते जाऊंगी, आप उसको नोट डाउन करते जाओ। एंड व्हेन यू आर राइटिंग, ये आपको होमवर्क रहेगा टू राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द लिवर। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, कि फंक्शन क्या है लिवर का। तो सबसे पहला फंक्शन मैं बता रही हूँ, इट इज स्टोरिंग ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, हाँ, इट इज स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग स्टारवेशन। इसका मतलब क्या बताया मैंने, कि जो भी, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, डाइजेशन होने के बाद वो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। जितना ग्लूकोज सेल को जरूरत है उतना सेल इस्तेमाल करेगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है दैट विल बी स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एंड दिस ग्लाइकोजन कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग स्टारवेशन। मतलब जब आप भूखे रहोगे, जब आप फास्टिंग करोगे, तो अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप बिना खाना खाए भी महीने भर रह सकते हो। तो कैसे रह सकते हो, जो हमारे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, रिजर्व मटेरियल स्टोर है, उसका ही इस्तेमाल किया जाता है इनटू ग्लूकोज। तो पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आ गया, फंक्शन ऑफ लिवर में, लिवर Yes. stores glucose in the form of glycogen which can be used during starvation. Starvation मतलब जब हम फास्टिंग कर रहे, जब हम खाना नहीं खा रहे। Second important point about the liver is it helps in deamination of amino acid. अब इसका मतलब क्या है, deamination, deamination of amino acid या फिर amino acid, whatever you pronounce. See, this part, ये जो अभी मैंने एक सेंटेंस बोला, ये आपको डिटेल में किडनी वाले लेसन में पढ़ना है, बट अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया कि जो भी ग्लूकोज है, जितना ग्लूकोज का इस्तेमाल होगा उतना ग्लूकोज यूज होगा, बाकी का ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। वैसे ही प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है। जितना अमाइनो एसिड हमारे बॉडी को जरूरत है उतना अपना बॉडी इस्तेमाल करेगा, बाकी का अमाइनो एसिड हमारे लिवर के पास भेजेगा कि चलो इसकी कुछ काम नहीं है अभी, आप इसका देखो क्या करना है। तो हमारा लिवर क्या करेगा, जो बच्चा कुछ अमाइनो एसिड है जिसका कुछ काम नहीं है बॉडी को, इस अमाइनो एसिड को वो डीअमाइनेशन करके अमोनिया में बदल देगा। क्या करेगा, अमोनिया में बदल देगा, और फिर अमोनिया से यूरिया बनता है, और यूरिया हम यूरिन में एक्सक्रीट करते हैं। समझा मैंने क्या बोला बेटा? अगर नहीं समझेगा तो प्लीज टेल मी। हाँ, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, द एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड with the process of deamination is been converted into what? Ammonia. And further this ammonia will be converted into urea, and urea will be excreted in our urine. Got it all of you? Any Yes. doubt? Any doubt? Okay, I hope there is no doubt. तो point number 2 भी clear हो गया, second function भी clear हो गया. Let us learn about the third function कि kidney liver का तीसरा function क्या है. तो liver helps in the formation or synthesis of vitamins also. कौन से विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12, ये सारे विटामिन लिवर खुद बनाता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, जो भी हम मिनरल्स देते हैं या विटामिन देते हैं बॉडी को, उससे वो खुद वो जनरेट करता है। So please note down. So liver helps in the synthesis of vitamin A, vitamin D, vitamin K and vitamin B12. Done. Third function. Fourth function क्या है liver का? Fourth function is
It helps in the formation of blood protein like prothrombin and fibrinogen. जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे ना बेटा, तब आपको एक लेसन है पढ़ने के लिए सर्कुलेशन, जिसमें आप हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ोगे. तो जब आप ब्लड के बारे में पढ़ोगे ना, then that time you will be learning about the blood clotting also. What is blood clotting? जैसे अगर मेरे को एक छोटा सा कट लग गया, तो थोड़ी देर के बाद खून आना रुक जाता है ना. क्यों रुकता है? That process is called as a blood clotting या blood coagulation. तो ये जो खून रुकता है, ब्लीडिंग रुक जाता है, it involves many process that you will be learning. There are 1 3 13 factors involved in just blood clotting. So हमें दिखता तो बहुत सिंपल सा है कि बार-बार थोड़ी देर के बाद 2 या 4 मिनट के बाद खून आना बंद हो गया, but it's a very important process. अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हमारा सारा ब्लड बह जाता बॉडी का, है ना. So in 12th standard you will be learning in detail about blood clotting factors. So ये जो blood clotting के लिए जो important protein है ना, prothrombin and fibrinogen, ये दो जो प्रोटीन है जो blood clotting में बहुत important है, वो liver ही बनाता है. मतलब अगर लिवर ना हो तो ये ब्लड प्रोटीन भी नहीं बनेगा, और ब्लड प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो अगर किसी इंसान को छोटा सा भी कट आ जाएगा ना, तो पूरा ब्लीड होके it can be fatal, it can lead to death of a person. समझ में आया? ठीक है. So prothrombin and fibrinogen also you have understood. So liver helps in the formation of this blood proteins. Next important point I discussed just now is about the Kupffer cells. The Kupffer cells helps in detoxification. Detoxification का मतलब क्या होगा? Removal of toxicity. Detoxification, removal of toxicity. ठीक है. It also helps in damaging the dead RBCs. जो भी dead RBCs है उसको भी वो निकालने में मदद करता है. समझा? Next important point about the liver is, see, during the early embryonic condition, जब एक बच्चा माँ के womb में है, माँ के गर्भ में है, उस टाइम पे, अभी आप सबको पता है, do you all know कि हमारा blood cells कहाँ पे बनता है? Do you all know हमारा blood cells कहाँ पे बनता है? Anyone? Bone marrow. शाबाश, वेरी गुड. बोन मैरो कहाँ पर है बेटा? बोन मैरो कहाँ पर है? डोंट टेल मी बॉडी में, वो तो मुझे भी पता. हाँ, प्लीज से इट अगेन. सेंटर ऑफ बोन. वेरी गुड, वेरी गुड. It is present in the shaft of the bone or at the center of the long bone. जो भी अपने अपने लंबे लंबे बोन्स है ना, लॉन्ग बोन्स है, जैसे कि हमारा ये ह्यूमरस बोन, हमारा थाई बोन, उसके अंदर बीच में सेंटर में बोन मैरो होता है और वहां पे बनता है. अच्छा, तो आपको इतना तो पता है. बट जब हम मदर के वूम में थे तभी तो हमारे बोन्स बहुत छोटे छोटे थे ना. तो उस टाइम पे लिवर क्या करता था? ब्लड सेल्स बनाने का काम करता था. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन व्हेन द बोन वाज नॉट सो वेल डेवलप्ड, दैट टाइम लिवर क्या करता था? ब्लड सेल्स बनाने का काम करता था. ठीक है. इसलिए जब भी कोई ऑर्गन ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है, हम उसे एक नाम देते हैं. वी से इट एज अ हेमोपोएटिक ऑर्गन. हेम का मतलब होता है ब्लड एंड पोएटिक का मतलब होता है फॉर्मेशन. सो हेमोपोएटिक ऑर्गन का मतलब क्या होगा? ब्लड सेल्स फॉर्मिंग ऑर्गन. So liver was acting as a hemopoietic organ during the early embryonic development. Understood this much also? Yes, miss. Then next point. As we know that कि liver secretes bile juice. So bile juice का काम क्या है? वो भी तो उसके function में ही आएगा ना. So bile juice का काम क्या है? Bile juice का काम है for emulsification of fat. Now what do you mean by emulsification of fat? Anyone knows? Emulsification का English का मतलब क्या होता है? Emulsified मतलब क्या होता है? Soft. आजकल आपने सुना होगा ना emulsified paint.
एशियन पेंट्स के इमल्सिफाइड पेंट, तो इमल्सिफाइड मतलब एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ पेंट, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है सॉफ्ट। तो जो भी हम फैटी चीजें खाते हैं उसको पहले सॉफ्ट किया जाता है, उसका छोटा 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 ब्रेक डाउन होता है। तो वो ब्रेक डाउन कौन करता है? ये बाइल जूस करता है। और फिर एक बार ब्रेक डाउन हो गया फिर उसके ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं। तो इसका ब्रेक डाउन होना बहुत जरूरी है, और वो कौन करता है? बाइल जूस करता है। समझ में आया? So liver secretes bile juice and bile juice helps in the emulsification of fat, softening of fat. अभी के लिए आप इतना ही समझो, it helps in the softening of fat. ठीक है? And bile juice is alkaline in nature, so it makes the food alkaline. It makes the food alkaline. ठीक है? All of you have understood. मैं वापस सारा points repeat कर रही हूँ. Please note down whether you have written the points line by line. सबसे पहला point I've told you कि liver stores excess of glucose in the form of glycogen which can be used during starvation. Point number 2, excess of amino acid has been converted into ammonia by the process called as deamination. This ammonia can be further converted into urea, which we excrete as a urine. Point number 3, it helps in the synthesis of vitamins like vitamin A, D, K, and B12. Point number 4, it also helps in the formation of blood proteins like the prothrombin and fibrinogen, which are blood clotting factors. Point number 5, Kupffer cells of the liver helps in detoxification. Detoxification मतलब removal of dead cells, damaged cells, removal of bacteria, all that things. Next, point number 6 is during early embryonic condition, liver was acting as a hemopoietic organ. Hemopoietic organ means it was helping in the formation of blood cells. Point number 7, as it secretes bile juice helps in the what? It helps in the emulsification of fat. Point number 7, it is making the food alkaline because bile juice is alkaline in nature. Is that very clear? 8 points लिख पाओगे आप लोग? Yes, miss. All of you. तो आपको यही मैं होमवर्क आज के लिए दे रही हूँ. What is the homework for all of you? आप लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में मुझे टैबुलर फॉर्म में लिख के दिखाओगे. पॉइंट नंबर 1. फिर आप मुझे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में तीनों अच्छे से लिख के दिखाओगे कि क्या क्या सिक्रीट करता है. और आप मुझे लिवर के बारे में लिख के दिखाओगे. लिवर में कौन कौन से पॉइंट्स आप मेंशन करोगे? यू विल बी मेंशनिंग अबाउट द ग्लिसन्स कैप्सूल, यू विल बी मेंशनिंग अबाउट द हेपेटिक लोब्यूल, यू विल बी मेंशनिंग अबाउट द हेपेटिक सेल, सेंट्रल वेन, ये सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े, हेपेटिक साइनोसॉइड या फिर ब्लड साइनोसॉइड्स, कफर सेल्स, हाँ, ये सारे पॉइंट्स आप लिख पाओगे. एंड देन लास्टली यू विल बी राइटिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिवर. Functions of liver. Anyone is having any doubt? No, miss. No doubt? सबको समझ में आ गया है? Shall I ask you questions? Now, you can see now on the screen, hepatic cell secretes alkaline hepatic juice. ठीक है? बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड फॉर एमसीक्यू इन द एग्जाम. बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, भले वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का एक जूस है, पर इसमें कोई एंजाइम नहीं होता. सिर्फ उसमें बाइल पिगमेंट होता है, कलर होता है. पिगमेंट का मतलब होता है कलर. कौन से दो पिगमेंट्स होते हैं? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये दो पिगमेंट्स होते हैं. बाइल सॉल्ट होता है. ये बाइल सॉल्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाइल सॉल्ट ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है. कोलेस्ट्रॉल होता है एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. सो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. Bile has no enzymes, but it contains bile pigments. Pigments means color, bile color. Which are that two colors? Bilirubin and biliverdin. It also contains bile salt. Bile salt is very important because that only helps in the emulsification of fat, cholesterol, and phospholipids.
ये जो पिगमेंट्स है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये कैसे फॉर्म होता है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी से फॉर्म होता है वो, ठीक है। हेपेटिक सेल्स बाइल जूस बनाता है और उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में। आप अभी देख सकते हो कि लिवर का डक्ट जिसको हम बाइल डक्ट भी बोल सकते हैं, तो हेपेटिक डक्ट भी बोल सकते हैं। देखो आप लिवर को बाइल डक्ट भी बोल सकते हो, हेपेटिक डक्ट भी बोल सकते हो, या फिर लिवर का डक्ट भी बोल सकते हो। तो लिवर का डक्ट एंड गॉल ब्लैडर आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि दोनों के डक्ट को हम टुगेदर क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग इट एज अ कॉमनली कॉल्ड एज अ कॉमन बाइल डक्ट। प्लीज नोट डाउन, duct of gallbladder and hepatic duct, duct of gallbladder and hepatic duct together is called as the common bile duct. Very important, again can be asked for MCQ or 1 mark question. And repeating it once again, gallbladder का duct and liver का duct, liver के duct को आप bile duct भी बोल सकते हो, आप hepatic duct भी बोल सकते हो। हाँ, उन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है या उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। One more important point which I just wanted to add on over here is the portal areas. See, liver act as a portal organ. Portal का मतलब क्या होता है? जब आप किडनी वाला लेसन पढ़ोगे ना, उस टाइम पे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी बिकॉज दिस टॉपिक इज कनेक्टेड विद दैट. So liver is acting as a portal organ. In our body, there is a hepatic portal system. Hepatic portal system. पोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जहां से कोई भी चीज, दैट इज अ जंक्शन पॉइंट, जंक्शन. तो लिवर इज एक्टिंग एज अ जंक्शन पॉइंट, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा ब्लड वेसल्स आकर लिवर में ओपन होता है, मतलब सारा लिवर को देता है और फिर लिवर से सारे ऑर्गन्स के पास जाता है. समझ में आया? मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड जो एब्सॉर्ब करता है फूड मटेरियल, वो डायरेक्टली सारे ऑर्गन्स को नहीं देता है, वो पहले जाकर लिवर को देता है, फिर लिवर सारे ऑर्गन्स को देता है. समझ में आया मैंने क्या बताया? इसीलिए लिवर को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि वो पोर्ट का काम करता है, जंक्शन का काम करता है. समझा? अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू? यस और नो? Yes, ma'am.